Yes, guys, very good evening to all. I'm audible. Good evening, sir. Yes, very good evening. Yes, guys, can you inform to others to join immediately so that we can start the session? Gitesh, Vishal, Harsh, Manoj, Harsh Kaur, can you inform to others to join immediately? Okay, sir. Okay, let's start, guys. Yes, sir. Okay. So, guys, today we will start our Hibernate framework. Okay. So, have you completed your previous task, everyone? Yes, guys. So, my screen is visible. Yes, sir. Okay. So, first of all, I'm going to close all the files. Okay. And I'm going to start with Hibernate. Okay. So, guys, if you have done JDBC now, because what happened earlier, they were in companies, they were developing web application using JSP servlet integrating with the JDBC. In JDBC, it's very difficult to perform all the operation. We can do it, but it takes too much time to in development because in JDBC we need to remember each and every column name, table name. We need to write the query. Queries are very complex. Okay, but in industry they require to develop application in very fast. So a new concept comes into the picture, that is Hibernate framework. So Hibernate basically deals with your database. Okay, it deals with the database. So Hibernate is an object relational mapping solution for Java. We will save direct object
of a class in our database. But in JDBC, we were storing single column. For example, student roll number, student name, contact, email, address. Each and every column we need to map with our table. Okay, but here we don't bother about individual column name. No, we will directly save complete object of the class. And what is the benefit of Hibernate framework? We don't need to write any SQL query. We will write code in a Java. It is a duty of Hibernate framework to convert your Java code internally SQL query. Why? Because Hibernate deals with HQL. HQL stands for Hibernate Query Language. Is it clear? Yes, guys, tell me yes or no. Yeah, so remember one thing, Hibernate deals with is based on ORM, Object Relational Mapping. Okay. Hibernate maps Java classes to database table. Okay. Hibernate maps to, yeah, we need to create classes and automatically it will map to database table. So Hibernate map Java classes to database table and from data and Java data type to SQL data type. See, you are writing Java data type, but automatically it will map to SQL data type. Okay. And you are writing 100% code in Java. You are not writing code in SQL, but it is a duty of a Hibernate to convert your Java code to SQL. Is it clear? Tell me yes or no. So in other words, you can say Hibernate sits between your Java program and RDBMS. Okay. Hibernate sits between traditional Java object and database server to handle all the work in pending those objects based on appropriate OR mechanism and pattern. Fine. Tell me yes or no. So see this architecture. This is your application. This is your database. Okay. We need to store persistent object, means we need to store our object in database. We need to retrieve our object from database. How it is possible? With the help of Hibernate. In this, we will contain Hibernate configuration file and mapping file. But nowadays we are not using mapping file because nowadays we are using annotation. Okay. Is it clear? Earlier they were using mapping file. Mapping file basically we need to write in XML file, but nowadays no one is using mapping file. Nowadays everyone dealing with the annotation. Okay. So the above diagram shows that Hibernate is using database and configuration data and provide a persistent service. Guys, when you implement the concept of Hibernate, there will be one configuration file. Okay. That is the very, very important configuration file, because when you run your project, first of all, compiler read which file? Configuration file. And configuration file we write in XML. In configuration file, we write each and everything. For example, our database name, our username, our password name, our driver name of our database. Okay. Database also, dialect also, SQL queries also, number of things we need to write in a database. In Hibernate, you should familiar this persistent API like Session Factory. You should know Session Factory belongs to your database. You need to create object of session. What is session? We will discuss. You need to create object of transaction also. Okay, transaction factory also. So each and everything will be clear one by one. In the beginning, for you, each and every term is new. But when we do practically one time, then concept will be clear to you. Your base will be clear, because same step you need to implement again and again. Okay. This is the architecture of Hibernate. First of all, I told you now, in Hibernate, you need to create which file? Configuration file. Which file, guys?
So in configuration file, basically, if you have object of configuration file, then you can create a object of a session factory. If you have object of session factory, then using open session, how you create object of session factory? Using build session factory method. Build session factory method is coming from this configuration object. And session factory you can create using build session factory. Session you can create using open session. If you have a object of session, see guys, what you can do. You can create transaction object. You can perform any transaction like save operation, update operation, delete operation. You can perform any query also. You can perform any criteria also. Is it clear? Tell me yes or no. So I'm trying to explain each and every API which we will use, okay? Okay, so this is Hibernate architecture. This is application, see session factory, session, transaction, JTA, JDBC, JNDI, okay? Fine. Is it clear guys? Just wait a minute, okay? Yes guys, is it clear? I'm audible guys? Yes, sir. So whenever you are implementing Hibernate, this term you should know. Session factory, session, transaction, okay? Because this term we need to use it. So you know, this is the previous version when we were using Hibernate, we were using XML, sorry, mapping file, but nowadays we are not using mapping file. So leave it. This is Pojo file. Okay. Pojo stand for plain old Java object. Okay. Pojo stand for plain old Java object. Mapping file we are not using. Okay. Nowadays we will implement the with annotation only, which makes your concept very easy. Yeah. Now, very important thing, configuration. I told you, na, configuration is very important. Yes, guys. So configuration is a class. Okay. Remember one thing. Configuration is a class which is present in which package, guys? org.hibernate.cfg package. So it activate Hibernate framework. It read both configuration file and mapping file. How to create object of configuration. See, this is class simply like we create object of any class. Simply we are creating it. CFG is the object of configuration. And remember one thing. When you create object of configuration, then you will call it's a static method. Which method? Configure. Okay. This is the very important method. When you call this method, it read your entire configuration file. ये सारी की सारी आपकी configuration file को read करेगा. Is it clear? सबसे पहले जब भी आप Hibernate कर रहे हो, you are implementing the concept of Hibernate and you are calling configure method. It check your entire configuration file. Okay? तो अगर तो कोई error होगा यहाँ से ही पता लग जाएगा. Second step से आगे करने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, आगे कोड लिखने की जरूरत ही नहीं है. ये सेकंड स्टेप से ही पहले चेक करो कि आपका कोड सही चल रहा है या नहीं, क्योंकि जैसे ही आप लिखोगे cfg.configure,
it will read your complete configuration file. अगर उसमें कोई एरर होगा तो ये बता देगा, अगर नहीं होगा तो आप आगे कोड लिख सकते हो. फाइन फाइन गाइस. So what we need to do further, it check whether configuration file is syntactically correct or not. If the configuration file is valid, suppose there is no error. Okay, suppose there is no error. Suppose configuration file is not valid. Okay, not valid, then it will throw an exception. If it is valid, then it create a metadata in memory and return the metadata to object to represent the configuration file. Fine guys. So this is the structure of your configuration file. See, we need to create one XML file. This is the DDD. How to add it? We will perform each and every step one by one. Okay, don't get confused. So in configuration file, we will take one tag, Hibernate configuration. In Hibernate configuration tag, we will take one session factory. Session factory basically for one database. If you want to connect with more than one database, then you need to create one more session factory. This is the beauty of Hibernate. You can perform connectivity with more than one session factory also, more than one database also. Okay, is it clear? And why we are using Hibernate? Guys, tell me. Suppose you have an application, web app 1. Okay, it is implementing with the suppose servlet JSP plus a JDBC. Okay, using MySQL. Is it clear, guys? Tell me. So what happened after month? There is a new requirement. Now you need to do connectivity with the different database. Okay, suppose there is a requirement or new project, some whatever you can assume. Okay, whatever you can assume. Suppose now you need to do connectivity with the Oracle. Okay, and guys, so what we need to do? The syntax of MySQL is different. Okay, syntax of MySQL queries are different from Oracle. जब आप अपनी एप्लीकेशन चेंज करोगे डेटाबेस, Oracle की क्यूरीज का सिंटैक्स डिफरेंट होगा ना, जो कि MySQL का यहाँ लिखा हुआ है. Yes guys. Guys, everyone, are you there or no? No one is responding. Only Yes, sir. responding. So after 6 months or 1 year, suppose you want to change the database. Okay. So here syntax is different and here syntax is different. So you need to do number of changes. Can you imagine? There are number of web pages, there are number of files, number of operations you need to do. You need to change the syntax every time. It will take time now. Tell me yes or no. Yes, sir. But if you are connectivity with Hibernate, if you are doing connectivity with Hibernate, suppose using MySQL database, and then
you don't need to do any change. This is your configuration file. You need to change only two things. First, this drivers 9, okay, this file or this dialect. You need to do only two changes. Or you can say this DTD you need to change. No, there's no need to change DTD. Only two changes. This file and this file. It will take how many time, guys? How much time? Tell me. 1 minute now. Because in Hibernate, we write code automatically. This Java code convert internally in SQL. It is a duty of Hibernate because you are writing code only in Java. Suppose later on you are doing connectivity in Oracle, then it is a duty of Hibernate to convert your Java queries into Oracle. Okay. So now you understand what is the benefit of Hibernate. So here you are writing data in primitive data type. Primitive data type, for example, you have a one class student. In student, there are number of attributes: roll number, name, class, okay, email. So you need to remember data type of each and every column. You need to remember column name of each and every spelling, okay, each and everything, index also. But in Hibernate, what you need to do? You don't remember anything. You need to store only object of student class. That's it. You need to save complete object. You don't bother about its column name, roll number, name, class, email. You will directly save complete object, which save your too much time. Okay. So any doubt till now? Because before proceeding further, I'm explaining each and every important concept to you why we are using Hibernate if you compare with JDBC. Okay. So Gitish, tell me what is the difference, what is the benefit of Hibernate, what do you observe till now? Mm. 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 Okay, so guys, is it clear? So this is the syntax of configuration file. How to create this configuration file we will also learn. Okay. So we need to create object of session factory also. I told you session factory belongs to your database. See which tag I'm using here, session factory now. Yes, guys. One session factory belongs to your database. So session factory is the interface which is present in org.hibernate package, okay? Which is present in a org.hibernate package, and it is used to create session objects. It is immutable, okay? You can't change it, and it is thread safe in nature. So एक built session factory होता है जिसकी हेल्प से आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो. सपोज CFG आपका क्या है, कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट है. इसके पास एक मेथड होता है बिल्ड सेशन फैक्ट्री. कैसे आप इसका मेथड का यूज करोगे, देन यू कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ सेशन फैक्ट्री. गाइस, इज इट क्लियर?
So session factory object is used by all the thread of an application. It is thread safe object. One session factory object is created per database. मैंने आपको बताया था ना, अगर एक से ज्यादा डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है तो एक से ज्यादा सेशन फैक्ट्री आपको डिफाइन करने पड़ेंगी आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में. ओके. So multiple session factory object are created when connecting to multiple databases. The session factory can also provide caching of persistent object. Okay. अब इसको यूज कैसे करना है गाइस? ये देखिए, सबसे पहले आपके पास कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट बनाना है आपने. जैसे कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट बना तो वहां से सेशन फैक्ट्री बनेगा. कैसे बनेगा? इस लाइन को देखो. कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट यूजिंग बिल्ट सेशन फैक्ट्री एंड यहां से आपको फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट मिल गया. जैसे ही फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट मिलेगा वहां से आप अपना सेशन क्रिएट कर सकते हो. सेशन. अब सेशन कैसे बनेगा? ये देखिए, ये फैक्ट्री क्या है? आपका ऑब्जेक्ट था ना गाइस, सेशन फैक्ट्री का. यस गाइस, ये ऑब्जेक्ट आपको एक और मेथड प्रोवाइड करेगा, दैट इज ओपन सेशन. टेल मी, किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे गाइस? टेल मी. यस. इज इट क्लियर? टेल मी यस और नो. तो आप एक चीज नोट करो कि कॉन्फ़िगरेशन आया तो सेशन फैक्ट्री बना, सेशन फैक्ट्री बना तो सेशन बना. ठीक है. सेशन के बाद आप ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो. ट्रांजैक्शन. गाइस, आपने कभी नोट किया कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो तो एक ओटीपी आता है, राइट? अगर तो आप ओटीपी एंटर कर देते हो तो आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है, नहीं तो अनसक्सेसफुल हो जाती है, राइट? तो अगर आप चाहते हो कि आपका ऑपरेशन कंप्लीट हो तो आपको किसका ऑब्जेक्ट चाहिए? ट्रांजैक्शन का. ट्रांजैक्शन डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन मेथड से आप ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, आपने डाटा सेव करना है, आप चाहते हैं कि आपका डाटा परमानेंट बेसिस पर स्टोर हो जाए, तो आपको कमिट करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा गाइस? कमिट. ओके. वहां पर आप टाइमर सेट कर सकते हो. वो एक सर्वलेट में एक फीचर होता है टाइम आउट. ओके. जब आपने सर्वलेट किया था ना, सर्वलेट, तो उसमें ना एक फीचर होता है टाइम आउट के. ऑटोमेटिकली जैसे आप मान लो किसी बैंकिंग वेबसाइट में आपने लॉगिन किया तो आपने नोटिस किया होगा ना कि ऑटोमेटिकली वो साइन आउट हो जाता है. ठीक है. तो उस चीज को भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, ये आपका कोई प्रोजेक्ट है. ठीक है. इसके अंदर मैं देखता हूँ क्या कोई है आपके पास एक्सएमएल फाइल. यस. तो इसमें क्या होता है कि एक ना टैग होता है, सेशन टाइम आउट. आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ व्हाट इज द एग्जैक्ट सेशन. एक टाइम आउट का होता है, मतलब उसमें आप लिख दोगे कि कितने मिनट के लिए आपका सेशन एक्टिव रही. ओके. सेशन, जस्ट वेट. ओके, मैं आपको बता रहा हूँ. तो वैसे ही उसके लिए भी आप कर सकते हो. ओके, जस्ट वेट. सेशन कॉन्फ़िग कर है ये टैग. ओके.
So guys, my screen is visible. Tell me. तो जैसे ना एक टैग होता है, जैसे आप अपनी XML में लगा नॉट येट विजिबल। अब ठीक है सर। ओके, तो आपके पास एक टैग होता है, ये देखो सेशन कॉन्फ़िगर क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया, सेशन टाइम आउट 5, कि अगर आपने लॉगिन किया और आप कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे हो वेबसाइट में, कुछ भी ऑप्शन को यूज नहीं कर रहे हो, है ना, तो ऑटोमेटिकली आप लॉग आउट हो जाओगे। कितने टाइम के बाद? 5 मिनट के बाद। ओके, आपने नोटिस किया होगा ना, कोई बैंकिंग की वेबसाइट में आप लॉगिन करते हो नेट बैंकिंग के लिए या कोई, हाँ तो ये, हाँ तो ये सेशन टाइम आउट के लिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर ये टैग लगाया होता है कि जैसे ही कोई आपकी आप कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे हो, आइडल है राइट आपका सेशन, तो इतने टाइम के बाद ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, तो इस टैग को भी आप नोट कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो जब आप सेशन ट्रैकिंग में कर रहे थे। आई फॉरगेट टू टेल यू। ओके, हम डिस्कस क्या कर रहे थे अभी? हम डिस्कस कर रहे थे कि ट्रांजैक्शन के कमिट करना पड़ेगा हमें। ओके, तो ये चीजें क्लियर हुई गाइस? टेल मी यस और नो। कुछ नॉलेज हुई आपको? अब हम क्या करेंगे, जो भी हमने डिस्कस किया है उसको प्रैक्टिकली करेंगे। ओके, क्या करेंगे गाइस? वी विल डिस्कस द थिंग्स प्रैक्टिकली। So I'm going to create new project. Okay, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या सिलेक्ट करना है? मैवन प्रोजेक्ट। ओके गाइस, विच प्रोजेक्ट यू नीड टू सिलेक्ट? मैवन। तो आपने नेक्स्ट करना है। जैसे नेक्स्ट करोगे, यहाँ पे ना कैटलॉग है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। यू नीड टू सिलेक्ट विच वन? इंटरनल। ओके, इंटरनल। और यहाँ पर आपने किस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है? मैवन आर्कटाइप क्विक स्टार्ट 1.1। फाइन, मैवन आर्कटाइप क्विक स्टार्ट 1.1। देन आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पर ग्रुप आईडी है ना, ग्रुप आईडी। तो ग्रुप आईडी आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैंने क्या लिया, हाइबरनेट बैच। ओके, आर्टिफैक्ट आईडी क्या दे सकते हो? मान लो मैंने डेमो दे दी, ठीक है। आर्टिफैक्ट आईडी आप हाइबरनेट ट्रेनिंग दे दी है। ओके, अब जो आपका पैकेज बनेगा, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ योर ग्रुप आईडी एंड आर्टिफैक्ट आईडी। देखो पहले क्या आ रही है आपकी? ग्रुप आईडी आ रही है, और बाद में डॉट लगा कर क्या आ रहा है? आर्टिफैक्ट आईडी आ रहा है। इज इट क्लियर? टेल मी यस और नो। ओके, देन आपने क्या करना है? फिनिश पे क्लिक किया। जैसे ही फिनिश के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। देखो हाइबरनेट ट्रेनिंग नाम से प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया आपका। अब हमने बनाया है मैवन प्रोजेक्ट। ओके, तो मैवन में सबसे पहले आपने किस फाइल को ओपन करना है? pom.xml। अब पॉम की फुल फॉर्म क्या होती है? एनीवन नोस? पॉम की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। क्या होती है गाइस? क्या? प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब जो आपकी पॉम फाइल होती है वो किस लैंग्वेज में लिखी होती है? XML फाइल। ओके, किस लैंग्वेज में लिखी होती है गाइस?
ये सारी XML है। देखिए यहाँ पर आपकी ग्रुप आईडी है, ये आर्टिफैक्ट आईडी नेम है, वर्जन लिखा हुआ है, पैकेजिंग आपकी जार है, नेम आपका हाइबरनेट ट्रेनिंग है, यूआरएल आपका maven apache.org से सब कुछ डाउनलोड हो रहा है। क्योंकि ये मैवन है ना, मैवन का मतलब क्या होता है कि जो प्लगइन्स होंगी, जो जार फाइल होंगी, वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होंगी वेबसाइट से, और वो आपके इस जो मैवन डिपेंडेंसी वाला ये फोल्डर है यहाँ पर ऐड होती जाएगी जैसे जैसे आपने यूज करते जाओगे। ओके, इज इट क्लियर? तो हियर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी एक डिपेंडेंसी वाला टैग है। देखो यहाँ पर जो जो हमें फंक्शनैलिटी चाहिए उसकी डिपेंडेंसी हम ऐड करते जाएंगे, और उसके जो रेलिवेंट जार फाइल है ऑटोमेटिकली डाउनलोड होके आपकी इस मैवन डिपेंडेंसी फोल्डर में ऐड होती जाएंगी। ये कहाँ से मतलब डाउनलोड होती है? maven.apache.org ऑटोमेटिकली डाउनलोड करेगा। इसलिए मैवन प्रोजेक्ट इज वेरी वेरी यूजफुल। जैसे मान लो आपने JDBC करना है, आपको JDBC के लिए एक ड्राइवर फाइल डाउनलोड करके प्लग इन करनी पड़ती थी ना, यस और नो? तो यहाँ पर तो हमें बहुत चीजें यूज करनी होती हैं, हर बारी हम डाउनलोड करके ऐड नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, एक इसका स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है मैवन का, हम डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, और आपका जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि डाउनलोड अपने आप तो होगा नहीं, आपका कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना चाहिए, तभी ये फाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोड होंगी और आपकी मैवन डिपेंडेंसी के फोल्डर में वो ऐड हो जाएंगी। राइट? यस गाइस। तो अगर आपने हाइबरनेट करना है तो सबसे पहले आपको दो डिपेंडेंसी ऐड करनी है, एक हाइबरनेट कोर और एक माई सिक्वल कनेक्टर, क्योंकि हम जो कनेक्टिविटी करेंगे डेटाबेस के साथ वो माई सिक्वल है, और हाइबरनेट की एपीआई यूज करनी है तो हाइबरनेट कोर की डिपेंडेंसी चाहिए। ओके, तो इसको यूज कैसे करना है हमने, हम ध्यान से देखिए। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, हाइबरनेट कोर मैवन डिपेंडेंसी। ओके, हाइबरनेट कोर मैवन डिपेंडेंसी, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो क्या होगा गाइस, एक लिंक ओपन हो। ओके, ये देखिए, अब यहाँ से ना आपने किसी फाइनल वर्जन को डाउनलोड करना है। ये देखो, ये क्या है, सेंट्रल बीटा 2, इसको नहीं करना, अल्फा को भी नहीं करना, हम किसी भी फाइनल वर्जन को उठा लेंगे। ये देखो, ये फाइनल वर्जन है, तो मैंने 5.6.2 को उठा लिया सब फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर जैसे मैंने ओपन किया तो ये डिपेंडेंसी आ गई, लिखी हुई है ना गाइस डिपेंडेंसी। तो आपने इस डिपेंडेंसी को क्या करना है, कॉपी करना है। ओके, और ये देखो, ये फर्स्ट डिपेंडेंसी है, तो यहाँ पर मैंने उसे पेस्ट कर दिया। ओके, इज इट क्लियर? अब ध्यान से देखना, जैसे ही अब मेरा इंटरनेट के साथ कनेक्ट है मेरा लैपटॉप, तो जैसे ही मैं सेव पर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली कुछ जार फाइल्स डाउनलोड होंगी, और वो किस में ऐड हो जाएंगी, आपकी मैवन डिपेंडेंसी फोल्डर में। फाइन, कहां पर ऐड हो जाएंगी? सेव कर रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट को, अब ध्यान से देखना, मैंने जैसे सेव किया ये डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये देखो 30%, 33%, ऑटोमेटिकली जार फाइल आ गई ना गाइस। तो इतनी जार फाइल क्या आप डाउनलोड कर सकते थे, यहाँ पर ऐड करते, कोई स्किप हो जाती? टेल मी यस और नो। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ मैवन प्रोजेक्ट। ओके, अब हमने एक डिपेंडेंसी तो ऐड कर दी हाइबरनेट कोर की, लेकिन मुझे कनेक्टिविटी करनी है माई सिक्वल के साथ, मुझे एक और चाहिए डिपेंडेंसी। तो मैं इस वेबसाइट को बैक करूंगा, यहाँ पर क्या लिखूंगा, माई एसक्यूएल कनेक्टर। ओके,
जैसे मैंने एंटर किया MySQL कनेक्टर, तो क्या होगा, ये लिंक आ जाएंगे। तो मैं फर्स्ट वाले के ऊपर क्लिक करूंगा, ये देखिए। तो अब हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं MySQL का? 8 कर रहे हैं ना गाइस? टेल मी, आपके सिस्टम में MySQL 8 वर्जन स्टोर है ना? Okay guys, as your wish, if you are not responding. Yes sir. तो गाइस आप रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हो? इफ आई एम आस्किंग टू यू, टेल मी। हाँ जी बताइए। आर यू इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू और नॉट? Yes sir. तो कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो MySQL का, बताइए। 8 सर। तो अगर आप 8 कर रहे हो तो 8 के रेलिवेंट देखो, कोई भी वर्जन की 8 के रेलिवेंट, ठीक है, कोई भी आप डिपेंडेंसी उठा सकते हो। जैसे मैंने 8.020 कर दिया, ओके, सपोज मैंने ये उठा ली, तो Oracle के लिए अलग होगी डिपेंडेंसी। सॉरी, Oracle के लिए अलग डिपेंडेंसी है, Oracle डेटाबेस के लिए। हाँ, और एक कल का कनेक्टर फाइल अलग करनी पड़ेगी। मैंने आपको बोला था ना कि आपको जस्ट ड्राइवर फाइल चेंज करनी पड़ेगी, दैट्स इट, राइट? ओके, तो यहाँ पर मैं MySQL की कर रहा हूँ, तो मैंने इस कनेक्टर फाइल की डिपेंडेंसी उठाई और हम चले गए अपने इक्लिप्स में। यहाँ पर मैंने सेकंड डिपेंडेंसी को पेस्ट कर दिया और इस फोल्डर में देखना, जैसे मैं सेव करूंगा MySQL कनेक्टर की 4 फाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोड होंगी और यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। ओके, ये देखो मैं सेव कर रहा हूँ, ये देखो आ गई ना 2 फाइल और। यस गाइस, टेल मी यस और नो। Yes sir. तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? Yes sir. तो ये तो था आपकी पॉम फाइल के बारे में कि आप ऐसे डिपेंडेंसी ऐड करते हो। अगर कल को आपने स्प्रिंग करना है, स्प्रिंग में भी आपको मैवन प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, स्प्रिंग की डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ती है, उसके कॉन्सेप्ट को लर्न करना पड़ता है। ओके, तो ये पॉम फाइल हमने कॉन्फ़िगर कर ली अपनी। उसके बाद जो फर्स्ट फोल्डर होता है, ये देखो, ये आपका जो पैकेज बन गया था हाइबरनेट बैच डॉट हाइबरनेट ट्रेनिंग, उसके अंदर आपके पास एक ऐप डॉट जावा होती है। ओके, इसको भी हम आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें अपनी क्या क्रिएट करनी है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो वो कैसे क्रिएट करनी है? आपने सोर्स यहाँ पर क्लिक करना है, राइट क्लिक, यहाँ पर हम XML फाइल क्रिएट करेंगे। कौन सी फाइल गाइस? XML। अगर आपको नहीं मिल रही हो XML फाइल तो आप कैसे सर्च कर सकते हो? न्यू पे जाओगे, अदर्स पर जाओगे, यहाँ पर सिंपली टाइप कर दो XML, अपने आप आ जाएगी। ओके, दिस XML फाइल यू नीड टू क्रिएट इट। जैसे नेक्स्ट करोगे तो इसको ना एक प्री डिफाइंड नेम होता है इसका, वो देना है आपने। क्या नाम है? hibernate.cfg.xml। ओके, hibernate.cfg.xml। तो जैसे मैंने नेक्स्ट किया, फिनिश किया, तो ये बन के आ गई फाइल। ओके, अब ये एक एम्प्टी फाइल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, राइट? और अगर मैं अपने नोट्स में आपको शो करूं, डिस्कस कर रहे थे ना अपने नोट्स में कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल का सिंटैक्स क्या होता है, ये देखिए, कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ओके, ये क्या है? कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो यहां पर क्या ऐड हुआ है गाइस? टेल मी। DTT क्या है? एक DTT ऐड करनी है।
बेसिकली ये DTD है जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को अंडरस्टैंड करती है। तो इस DTD को ऐड कैसे करते हैं? यहाँ से कॉपी पेस्ट करके वहां पे ऐड कर सकते हो, बट अगर मैं बोल लूँ कि नेट से कैसे करना है ना, आपको पता होना चाहिए कैसे कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन DTD 3.0 कर लेना, ठीक है। तो जैसे ही आपने फर्स्ट लिंक पर क्लिक किया, यहाँ पर देखना क्या आ जाएगा। DTD नहीं आ रही यहाँ पर, राइट। Okay, I think they are doing some updation, right? Suppose मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ किसी और वेबसाइट पर। यस, यहाँ से कर लेते हैं। वैसे ऑफिशियल वेबसाइट से करनी चाहिए, वो ओपन नहीं हो रही थी, तो मैं इस चीज यहाँ को इसको कर लेता हूँ। ओके फाइन गाइस, यहाँ पर हमने कर दिया जी पेस्ट। ओके, तो ये हमारी होगी DTD। अब हमने क्या करना है, इसमें अपना कॉन्फ़िगरेशन टैग लगाना है, कॉन्फ़िगरेशन टैग। ओके, इस कॉन्फ़िगरेशन टैग में क्या लगाएंगे हम, सेशन फैक्ट्री। फाइन गाइस, टेल मी यस और नो। तो यहाँ पर ना बड़ी सारी स्टेटमेंट्स होती हैं, धीरे धीरे याद हो जाएंगी, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट प्रोवाइड कर रहा हूँ कि ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें ऐड करनी होती है। हम टाइप 1 बाय 1 करके ऐड करते हैं। ओके फाइन, यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके गाइस, यस सर। तो मेरा यूजर नेम रूट है, याद है ना आपको जब हमने JDBC किया था। ओके, पासवर्ड मेरा है 12345। ये मेरा कनेक्शन का URL है JDBC कोल। अगर आपने JDBC किया ना, वो सारे सेम स्टेप्स हैं। JDBC MySQL कोलन लोकल होस्ट, ओके कोलन, ये मेरा पोर्ट नंबर होता है। और जो डेमो 2 है, यहाँ पर हम क्या देंगे, अपना डाटाबेस का नाम। सपोज हम अपना एक डेटाबेस बना रहे हैं, क्रिएट डेटाबेस, क्या रखे नाम गाइस, टेल मी। Altruist. टेल मी स्पेलिंग। ALTRUIST. IST। IST। गाइस, तो ये हमारा डाटाबेस बन गया। शो डेटाबेसेस, ये देखो आपका ये डेटाबेस रिफ्लेक्ट होने लग गया यहाँ पर। टेल मी। Yes sir. हम इस डेटाबेस में वर्क करना चाहते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, इसका नाम लिखेंगे। डेटाबेस आपका चेंज हो गया, तो यहाँ पर हम अपना डाटाबेस लिख देंगे जो हमने क्रिएट किया है। फाइन, यस गाइस, पासवर्ड मेरे सिस्टम में मेरे डाटाबेस का है 12345, तो मैंने ये लिख दिया। ये जो दो स्टेटमेंट्स है ना, ये प्रॉपर्टीज है। बेसिकली मैं तो कोड लिखूंगा जावा में, लेकिन वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होगा SQL में।
अगर आप उन क्यूरीज को देखना चाहते हो तो आप इस प्रॉपर्टी को ट्रू सेट कर दोगे शो सीक्वल कि जब वो कन्वर्ट हो रही होंगी, जब वो क्यूरीज एग्जीक्यूट हो रही होंगी, वो आपको दिखाई देंगी। अगर आप नहीं लिखोगे तो वो दिखाई नहीं देंगी, लेकिन आपका प्रोग्राम चल जाएगा। ओके, इज इट क्लियर? शो सीक्वल एंड फॉर्मेट अंडरस्कोर सीक्वल। ओके, अब चीज आती है हमारी, ये भी आपको पता ही है, ड्राइवर फाइल हमने जेडीबीसी में किया था ना, com.mysql.cj.jdbc ड्राइवर। हाँ, अब बात आती है इसकी कि ये डायलेक्ट क्या है। डायलेक्ट हर डेटाबेस का एक ऐड करना पड़ता है, लेकिन आप इस चीज को याद कैसे रखोगे, ये तो नई चीज आ गई आपके लिए। तो सपोज ओके, कोई भी जावा फाइल में चले जाओ, जैसे ये जावा फाइल है ना, तो मैं यहां पर क्या प्रेस करूंगा, ओल्ट शिफ्ट प्लस टी, ये की मैं प्रेस करूंगा एक साथ, ओल्ट शिफ्ट टी, तो ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ओके, मैं यहाँ पर लिखूंगा MySQL डायलेक्ट। क्या लिखूंगा गाइस? MySQL डायलेक्ट। लेकिन मुझे डायलेक्ट कौन सा चाहिए? 8 का, क्योंकि मेरा 8 वर्जन है ना गाइस। टेल मी यस और नो। यस सर। तो जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, क्या करना है, पहले तो आपने इस पैकेज को कॉपी करना है। सपोज मैंने यहाँ पर पेस्ट भी कर दिया इसको अलग से, यहाँ पर मैं पेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, सपोज मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ओके, डॉट क्या करूंगा मैं यहाँ पर, ये जो मेरी क्लास का नाम है ना MySQL डायलेक्ट, इसको कॉपी कर लूंगा। जो हमारे पास नोटपैड था हम उसके ऊपर मूव करेंगे और डॉट लिखकर मैं क्लास नेम लिख दूंगा। पहले किसका नाम लिखा? पैकेज का। डॉट के बाद क्लास नेम। ओके, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया जी, और हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के पास चलेंगे। अब यहां पर देखिए सेम होगा, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इज इट क्लियर? टेल मी यस और नो। तो ये प्रॉपर्टी नेम जरूर याद रखना पड़ेगा, hibernate.dialect, hibernate.connection.driver class। ओके, जो डेवलपर होते हैं ना वो इतना कुछ याद नहीं रखते, वो उन्होंने कॉपी पेस्ट लगाना है कि ये स्टेप तो कॉमन होता है हर बारी, जैसे वो अपना डेटाबेस और यूजर नेम चेंज कर देते हैं। राइट? यस गाइस। इसको हमने किया डिलीट, और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है अपडेट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी दो वैल्यू होती है, या तो आप यहाँ पर क्रिएट लिख दो, अगर मैंने क्रिएट लिख दिया ना यहाँ पर स्मॉल लेटर में, तो जब भी आप अपने प्रोजेक्ट को रन करोगे हर बारी न्यू टेबल क्रिएट कर देगा, पुराने टेबल को डिलीट कर देगा और न्यू क्रिएट कर देगा, मींस पुराना डाटा डिलीट हो जाएगा हर बारी। टेल मी यस और नो। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या मेंशन करते हैं, अपडेट। अपडेट का मीनिंग क्या है, टेबल एक बार ही क्रिएट करेगा, अगर आप उसको फिर से रन करोगे तो अगर कोई न्यू डाटा आया है उसे अपडेट कर देगा, लेकिन टेबल फिर से क्रिएट नहीं करेगा। ओके, एनी डाउट टिल नाउ? तो गाइस आई एम एक्सप्लेनिंग यू वेरी वेरी डीपली, एक एक स्टेप बता रहा हूँ कि कैसे करना होता है। अगर आप खुद लर्न करोगे ना, मान लो यूट्यूब से करते हो, यहाँ से करते हो, इट विल टेक टू मच टाइम। ओके, तो ये हमारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमने प्रिपेयर कर दी अपनी। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ये आपकी ऐप डॉट जावा है, यहाँ पर हमने अपना मेन काम करना है। पहला स्टेप मैंने क्या बताया था गाइस? टेल मी कि क्या करना है सबसे पहले? कॉन्फ़िगरेशन। क्या चाहिए हमें? कॉन्फ़िगरेशन।
फिर ऑब्जेक्ट चाहिए, जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा फिर हमें सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट चाहिए, जब सेशन फैक्ट्री का आ जाएगा फिर मुझे सेशन चाहिए, जब सेशन आ जाएगा फिर ट्रांजैक्शन चाहिए। इज इट क्लियर? यस गाइस। यस सर। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन क्लास का। अब ध्यान रखना बड़ी सारी चीजें आएंगी और डिफरेंट पैकेज में वो सेम होंगी, लेकिन हमने कौन सा पैकेज इंपोर्ट करना है, org.hibernate.cfg पैकेज। ओके, हर बारी। तो मैंने इसका कॉन्फ़िगर, ठीक है, मान लो ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया जी यहाँ पर सेमीकोलन। ओके फाइन गाइस। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, मैंने एक बताया था ना, इसके पास एक मेथड होता है जो आपकी पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रीड करता है गाइस, configure method. This method, it reads your entire configuration file. Okay, is it clear? यस सर। ये मैं हेलो वर्ड ना फिर से प्रिंट कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं अपने प्रोजेक्ट को रन करूंगा, ठीक है, और यहाँ पर हेलो वर्ड फिर से लिखा आ गया, इट मीन्स मेरा प्रोजेक्ट कोई एरर नहीं है, नहीं तो एक्सेप्शन आ जाएगी ना। नेक्स्ट लाइन तो एग्जीक्यूट होती नहीं है जब एक्सेप्शन आ जाए। टेल मी यस और नो। अगर ये लाइन प्रिंट होगी तो मेरा प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी मेरी डेटाबेस के साथ हो गई। ओके, अदरवाइज ये लाइन नहीं एग्जीक्यूट होगी, इट मीन्स कोई एक्सेप्शन आ जाएगी। तो मैं इसको रन कर रहा हूं, देखते हैं। मैंने इसको स्टॉप कर दिया, ठीक है। एक चीज स्किप रहेगी, जो ये कॉन्फ़िगर है ना, अगर तो ये हाइबरनेट CFG एक्सएमएल फाइल बाहर है, बट फिर भी हमें यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा इसका नाम। क्या नाम है इसका? hibernate.cfg.xml. okay, you need to specify this name. अगर ये आउटसाइड है पैकेज के तो कोई पाथ देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दे सकते हो। अब मैं रन कर रहा हूं फिर से। यस गाइस, इट इज एग्जीक्यूटेड। ये लाइन प्रिंट हो रही है ना, इट मींस हमारी एक्सेप्शन Yes. नहीं है, राइट, मींस कनेक्टिविटी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, सपोज हम एक क्लास बनाएंगे, एंटिटी फाइल या पोजो फाइल भी बोलते हैं जिसे। मैं क्लास बना रहा हूं यहाँ पर स्टूडेंट, मेरे पैकेज का नाम क्या है, एंटिटी, जिसे पोजो फाइल भी बोलते हैं। ओके, मैंने यहाँ पर क्या बनाया, स्टूडेंट एंटिटी। ओके, ये हमने बनाई थी क्लास अपनी। हम कुछ इंस्टेंस वेरिएबल ले रहे हैं, प्राइवेट टाइप के, प्राइवेट इंट रोल। ओके, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग उस ईमेल। फाइन, हैव 3 इंस्टेंस वेरिएबल। अब इसके हमने क्या करने हैं गाइस, गेटर सेटर बनाने, ठीक है। गेटर सेटर कैसे बनेंगे, सोर्स में जाओगे आप, जनरेट गेटर एंड सेटर, इसको सिलेक्ट करोगे, जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल्स थे, जनरेट, ये सारे आपके गेटर सेटर बन के आ गए। फाइन गाइस, टेल मी। यस सर। नेक्स्ट हम इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, सोर्स में जाएंगे, जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड, मैंने किया, कंस्ट्रक्टर बन के आ गए। हमें एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी चाहिए विदाउट पैरामीटर। मैं फिर से सोर्स में जाऊंगा, जनरेट कंस्ट्रक्टर फ्रॉम सुपर क्लास, तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन के आ जाएगा। सेकंड, आपको टू स्ट्रिंग मेथड करना है। टू स्ट्रिंग की क्या वर्किंग होती है गाइस,
Who will explain? ये देखो टू स्ट्रिंग भी आ गया. What is the working of two string method? Yes guys, tell me. टू स्ट्रिंग मेथड हम क्यों यूज करते हैं? अगर ऑब्जेक्ट प्रिंट करेंगे तो उसका हैश कोड प्रिंट कर देगा, नहीं तो उसको मतलब ओवरराइड करना पड़ेगा टू स्ट्रिंग को. एग्जैक्टली. अगर आप टू स्ट्रिंग मेथड नहीं करते, आप स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट प्रिंट कर रहे हो, तो इसका हैश कोड प्रिंट कर देगा, हैश कोड जो आपको समझ में नहीं आएगा. अगर आप चाहते हो इनकी वैल्यू प्रिंट हो तो आपको टू स्ट्रिंग मेथड डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनली टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होता है जब भी आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट प्रिंट करते हो. अब हमने इस क्लास को बनाना है टेबल. हमने क्या बोला था कि जो आपका हाइबरनेट है, इट इज बेस्ड अपॉन ORM, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग. इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, वो कैसे होएगा? हम यहां पर यूज करेंगे एनोटेशन. एंटिटी. एंटिटी का मीनिंग क्या है? टेबल. तो मैं यहां पर क्लिक करूंगा, इंपोर्ट जावा एक्स परसिस्टेंट. ये एनोटेशन किसके अंदर है? इस पैकेज के अंदर है, राइट. और आप अपने रोल नंबर को क्या बनाना चाहते हो गाइस? टेल मी. प्राइमरी की. तो प्राइमरी की के लिए कौन सी एनोटेशन होती है? आईडी. तो इसको भी आप इंपोर्ट कर दोगे. फाइन. ये आपके कॉलम है आपके टेबल के. तो ये एनोटेशन यूज कर ली, कॉलम एनोटेशन. सिमिलरली हम क्या करेंगे? ईमेल के लिए भी यूज करेंगे. ओके फाइन. यस गाइस, इज इट क्लियर? कहां पर? नहीं, अभी डिलीट हो गया होगा. इज इट क्लियर? अब हमने क्या करना है, ये हमारी एंटिटी फाइल बन गई. ठीक है, ये एंटिटी फाइल है, वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगी अपने आप. मैं नहीं कर रहा, इट इज अ ड्यूटी ऑफ हाइबरनेट. तो जो आपकी ऐप डॉट जावा थी, अब यहाँ पर हम क्या बनाएंगे? अपना सेशन फैक्ट्री बनाएंगे. सेशन फैक्ट्री. ओके, ये देखो सेशन फैक्ट्री एक तो है com.mysql में, एक है आपका org हाइबरनेट में. आपने org हाइबरनेट वाला लेना है. ओके यस गाइस. सेशन फैक्ट्री इज इक्वल टू, अब आपका ऑब्जेक्ट क्या था कॉन्फ़िगरेशन का? कॉन्फ़िगर. इसका मेथड क्या यूज करोगे? बिल्ड सेशन फैक्ट्री. ओके, तो सेशन फैक्ट्री के बाद मुझे किसका ऑब्जेक्ट चाहिए होता है? टेल मी. सेशन का. तो मैं सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा. सेशन फैक्ट्री, इसका एक मेथड होता है ओपन सेशन. ओके, कौन सा मेथड होता है गाइस? ओपन सेशन. अब सेशन है, ये भी एरर दे रहा है, इसका भी पैकेज हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा. कि कौन सा करेंगे, ये ध्यान से करना. देखो सेशन आपका com.mysql में भी है, MySQL यहाँ पर भी है, बट वी नीड टू इंपोर्ट org.hibernate. ओके फाइन गाइस. जितने भी ये कंपोनेंट है, इंटरफेसेस हैं, ये किसके अंदर है? org.hibernate पैकेज में. तो यहां तक तो हो गया. एक ट्रांजैक्शन भी हम क्रिएट कर लेते हैं. ट्रांजैक्शन tx session dot begin transaction. ओके, तो अब यहाँ पर देखो रॉन्ग पैकेज हो गया ना इंपोर्ट. ये देखो जावा एक्स का हो गया, मुझे तो org हाइबरनेट का करना है, राइट. org.hibernate. ओके, एरर चला गया ना. अब यहां तक हमारा टास्क परफॉर्म हो गया. अब जो मेरे पास एंटिटी फाइल थी, स्टूडेंट एंटिटी फाइल थी ना हमारे पास, अभी क्रिएट की थी, का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम. फाइन.
entity dot set roll number. Fine. Entity dot set name. Okay. Suppose Rohit. Entity dot set email, और यहां पर मैं स्टोर कर रहा हूं rohit@gmail.com. फाइन. तो ये डाटा मैंने एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कर दिया. देखो JDBC में क्या होता है, हाइबरनेट में एक बार ही कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है. आप सोच रहे होगे पता नहीं कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करो, ये करो, वो करो, एक बार ही करना पड़ता है. उसके बाद आपका टास्क बड़ा इजी हो जाता है. ठीक है. तो अब सपोज मैंने डाटा सेव करना है, तो मैं क्या करूंगा, सेशन डॉट सेव मेथड, एंटिटी पास की, ये सेव हो गया. परमानेंट बेसिस पर करने के लिए ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे, tx.commit. फाइन. देखो जब मैंने सेव किया तो मैंने जब सेव मेथड किया, और जब मैं JDBC करता था क्या लिखना पड़ता था मुझे, कितना बड़ा कोड लिखना पड़ता था ना. यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन फाइल तो एक बार ही करनी पड़ती है, बार बार नहीं करनी पड़ती. उसके बाद आपका टास्क इजी हो जाता है काफी. तो अब हम क्या करते हैं, ये आपका था डेटाबेस. मैं यहां पर देखता हूं शो टेबल्स. क्या इसमें कोई टेबल है? कोई टेबल नहीं है ना गाइस? यस गाइस. तो हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे. ठीक है. क्योंकि मैंने एंटिटी का एक एक चीज रह गई, एक चीज मिसिंग रह गई, कि जैसे हमने ये एंटिटी फाइल बनाई थी, तो इसकी एंट्री हमें कहां पर करनी है, अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में. ये गलत है. मैपिंग टाइप, मैपिंग वाला रिसोर्स मैं डिलीट कर रहा हूँ. ये रिसोर्स यहाँ पर लिखा हुआ है ना, रिसोर्स. रिसोर्स हम तब यूज करते थे जब हमारे पास मैपिंग फाइल होती थी, लेकिन अब हमारे पास मैपिंग फाइल नहीं है, हम एनोटेशन यूज कर रहे हैं. तो जब हम एनोटेशन यूज करते हैं तो यहाँ पर एट्रीब्यूट चेंज हो जाता है, हम क्लास यूज करते हैं. ओके. तो जो मेरा स्टूडेंट एंटिटी है वो किस पैकेज के अंदर है, हाइबरनेट बैच डॉट एंटिटी, इसके अंदर है ना गाइस. और एक और मेथड बताऊं, राइट क्लिक करो अपनी फाइल के ऊपर, कॉपी क्वालिफाइड नेम कर दो. ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं होती, ये शॉर्टकट होता है. ये देखो, यस, यहां तक तो डिलीट कर दो. ठीक है. यहां तक डिलीट कर दिया हमने. ये इसका पाथ आ गया, हाइबरनेट बैच. यहाँ पर XML में डॉट यूज करते हैं, स्लैश यूज नहीं करते. ये मैंने डॉट लिख दिया. डॉट जावा हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्लास का नाम लिखेंगे. तो ये पाथ आ गया जी, इस पैकेज के अंदर ये मेरी क्लास है. ओके. तो ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर. फाइन. तो ये मैप करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपकी एंटिटी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, टेबल नहीं बनेगा. जितनी एंटिटी क्लासेस बनाओगे आप एनोटेशन के थ्रू, उसकी एंट्री मैंडेटरी है आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्लास के अंदर. इन दिस वे आपको करना पड़ेगा मैपिंग टैग क्लास, पहले पैकेज का नाम, फिर क्लास का नाम. इज इट क्लियर? यस गाइस. तो हम अब क्या करेंगे आगे, मैं सपोज रन करने जा रहा हूं अपने प्रोजेक्ट को. तो जैसे हमने रन किया, ये देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये देखो गाइस, अपने आप SQL लिखी गई, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, क्रिएट टेबल, स्टूडेंट एंटिटी, रोल नंबर, इंटीजर, ईमेल, वेयर, कैर. टेल मी यस और नो. और यहाँ पर इंसर्ट भी हो रहा है डाटा. यस सर. ये क्यूरी हमने तो नहीं लिखी ना, हमने तो कोड जावा में किया, बट इट इज द ड्यूटी ऑफ हाइबरनेट कि इस जावा के कोड को इंटरनली स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करें. मैंने आपको बताया था ना, किसी भी डाटाबेस के साथ आप इंटीग्रेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमने कोड जावा में लिखना है और उसने कोड अपने आप इंटरनली कन्वर्ट करना है. ओके. इज इट क्लियर? अब इस कोड को हम क्या करेंगे, अपने डेटाबेस में चेक करेंगे. शो टेबल, टेबल आ गया देखो गाइस अपने आप. टेल मी,
अगर मैं यहाँ पर इसको डिस्क्राइब करूं, स्टूडेंट एंटिटी, हाँ जी आ गया यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर करूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट एंटिटी, सेम डेटा आ गया, देखिए। यस गाइस, एनी डाउट? गाइस क्लियर हुआ? अब जैसे आपने सर्वलेट सीखा था, है ना, JSP मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया, ज्यादा नहीं, तो मतलब मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दिए थे, आप सीख सकते हो। तो आप अपनी वेब एप्लीकेशन को हाइबरनेट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। ओके गाइस, क्लियर हुआ कुछ के नहीं? देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स इन हाइबरनेट। ये एक बिगिनिंग इंट्रोडक्शन पार्ट था कि सारे स्टेप्स कैसे परफॉर्म होते हैं, जिसमें हमने अपनी कॉन्फ़िगरेशन की, पॉम फाइल को कॉन्फ़िगर किया डिपेंडेंसी के थ्रू, API को डिस्कस किया, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेशन फैक्ट्री क्या है, सेशन क्या है, ट्रांजैक्शन क्या है, स्टोर कैसे करोगे, एंटिटी के लिए कौन कौन सी एनोटेशंस हैं, राइट? सर प्राइमरी की के लिए एनोटेशन @id लगेगी। यस। और सर अगर चेक कंस्ट्रेंट लगाना हो तो? चेक कंस्ट्रेंट क्या लगाना है आपने? मतलब मान लो सर एज है मेरा, एक कॉलम ने उसका नेम है एज, तो मैंने चेक करना है कि वो 18 से ऊपर ही हो, तो उसके लिए कोई एनोटेशन अलग से? आईडी के लिए कर रहे हो या मतलब किसी कॉलम के मतलब लिए कर रहे किसी कॉलम के लिए। हो? मान लो सर मेरा फॉरेन की है तो उसके लिए। सपोज मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक इंट एज, ठीक है, सपोज ऐसे चेक करने के लिए। यस सर। तो होगा इसके लिए, एक्चुअली उसके लिए क्या होते हैं कि कुछ एट्रीब्यूट होते हैं जो हमें यूज करने होते हैं, ऐसे ब्रैकेट में डाल के ना। ओके, जैसे आप कह रहे हो कि चेक लगा दो जी, तो जी। ऐसे हमें कुछ चेक करना पड़ेगा, कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, वी कैन इम्प्लीमेंट इट। ओके, कुछ ओके। भी चीज हो आप कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन आपको राइज हो गया, तो हम गूगल पे करेंगे भी क्या सिंटेक्स है, हम यहाँ पर लगा देंगे। जो आप चेक कंस्ट्रेंट लगा कह रहे हो वो लग सकता है यहाँ पर, ओके। ओके सर। एनोटेशन के थ्रू ही लगेगा। ओके। फाइन। यस सर। फाइन गाइस, जैसे मैं कहता हूँ कि नोट नल हो, है ना, नोट नल, तो आप यहाँ पर लगा दो नोट नल। फाइन, यस सर। नोट नल लग जाएगा। अगर आप चाहते हो कि यू नो कुछ और नाम देना है, स्टूडेंट एंटिटी ना आए, अब यहाँ पर दे दो स्टूडेंट, तो स्टूडेंट नाम का टेबल बनेगा, स्टूडेंट एंटिटी का नहीं बनेगा। तो मतलब एक बार ये अगर स्ट्रक्चर समझ में आ गया, उसके बाद तो जितना मर्जी एक्सप्लोर करना है, डिपेंड्स ऑन यू। फाइन। यस गाइस। यस सर। तो ये तो जैसे जैसे क्वेश्चन राइज हो जाएंगे, आप गूगल पर सर्च करते जाओ, थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, आप करते जाइए, राइट? बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कि अगर आपको कुछ पता ही नहीं है ना, इफ यू वांट टू लर्न, अगर इतना आपने कर लिया ना, तो क्या होगा कि आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। ओके, आज आपने सारा कुछ ही देखो, आई थिंक मैवर प्रोजेक्ट फर्स्ट टाइम क्रिएट किया होगा आपने, राइट? ईच एंड एवरीथिंग नया होगा आपके लिए कि कैसे पॉम फाइल को डिजाइन करना है, ऐड करने हैं, तो ये स्ट्रक्चर है नया आपके लिए, इसको आप प्रैक्टिस करो, ठीक है? इज इट क्लियर? यस सर। तो यही असाइनमेंट करनी है आपने, कि मान लो कनेक्टिविटी करनी है हाइबरनेट के साथ, डाटा आपने स्टोर करना है। अभी तो हम क्या कर रहे हैं कि मैन्युअली ऐड कर रहे हैं। मान लो कोई लॉगिन फॉर्म है, लॉगिन से डाटा आ रहा है, कोई फॉर्म बना लिया, फॉर्म से डाटा आ रहा है, वो सारा का सारा डाटा हाइबरनेट में जाके स्टोर होगा। फाइन। सर मेवन का यूज किया है। क्या लगा आपको, क्या यूज है?
सर इसमें समझ ही नहीं आ रहा, मेवन की फाइल ऐड हो गई सर, पता ही नहीं चल रहा है कि मतलब मेवन की फाइल हमने ऐड क्यों की है। ओके, जितेश आप बताइए क्या ऑब्जर्व हुआ, आपके मैवन का क्या बेनिफिट लगा आपको? हाँ, ये देखो, ये वो जार फाइल कौन सी है, ये देखो, ये जार फाइल दिखाई दे रही है ना आपको, ये अपने आप डाउनलोड हुई है अपने आप और इसमें ऐड होगी, क्योंकि मैंने 2 डिपेंडेंसी ऐड की थी यहाँ। अदरवाइज आप गूगल पर सर्च करोगे, फिर डाउनलोड करोगे, अब किस वर्जन की है ये चेक करोगे, फिर मैन्युअली अपने प्रोजेक्ट में ऐड करोगे जब हमारा नॉर्मल प्रोजेक्ट होता है। लेकिन जो मैवन है वो जावा में ही बना है, वो जावा के कंपेटिबल है, और हर उसको ये पूरा स्ट्रक्चर पता है मैवन को कि आपके प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, तो ऑटोमेटिकली डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग जावा फाइल डाउनलोड करता है और इसमें अपडेट कर देता है। कुछ भी फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, आप डिपेंडेंसी ऐड करोगे, जैसे आपका प्ले स्टोर नहीं है मोबाइल का, एंड्रॉयड का, कोई भी यस सर। एप्लीकेशन, कोई भी फंक्शनैलिटी चाहिए, एप्लीकेशन डाउनलोड की, आप उसे यूज कर सकते हो। सिमिलरली कुछ भी फंक्शनैलिटी चाहिए, आप डिपेंडेंसी ऐड करो, उसके फीचर आपके प्रोजेक्ट में आ गए। फाइन। ओके सर। यस गाइस, क्लियर हुआ कंसेप्ट? टेल मी यस और नो। तो गाइस ये जो नोट्स हैं, ओके, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सेकंड, आपने क्या करनी है, ये असाइनमेंट है एक तरह की कि आपने डाटा स्टोर करना है। मैं एक सिंपल सी फाइल में क्या करूंगा, स्टोर करूंगा, मीन्स शेयर करूंगा आपका जो भी फोल्डर बना हुआ है, ओके, स्काइप का, और आपने ये प्रोजेक्ट बना के अपलोड करना है अपनी एलएमएस के ऊपर। इज इट क्लियर? चल नहीं रहा? कब से नहीं चल रहा? 3-4 दिन हो गए। तो आपने बना के रख देना है, ठीक है ना? अगर नहीं चल रहा तो उनकी हेडेक है, राइट? तो इज इट क्लियर? टेल मी यस और नो। तो जो ये नोट्स है मैं आपको अभी शेयर कर रहा हूँ, ओके गाइस, समझ में आया कुछ के नहीं आया? टेल मी ऑनेस्टली। यस गाइस? आया सर। यस सर। जस्ट वेट।